یہ کہانی ہے ایک شیر اور چوہے کی۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا اور چوہا ایک چھوٹا سا ڈرپوک جانور۔ دونوں کا تعلق ایک ہی جنگل سے تھا، مگر کبھی بھی ان کا آپس میں ملنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن شیر کھانا کھا کے گہری نیند میں سو رہا تھا اور چوہا بے فکری سے زمین پر دوڑ رہا تھا۔ چوہا ایک طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور شیر کے جسم پر چڑھ گیا۔ شیر نے اپنے جسم پر چھوٹے چھوٹے قدموں کو محسوس کیا اور فوراً بیدار ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میری نیند میں خلل ڈالنے کی جرت کیسے کی؟ شیر صاحب، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں صرف گزر رہا تھا اور آپ کے جسم پر چڑھ گیا۔ برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ شیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے چوہے کو غور سے دیکھا۔ تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہاری جان میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر بھی تم نے معافی مانگی ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ شکریہ شیر صاحب، میں آپ کا احسان مند رہوں گا اور ایک دن اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک دن شیر شکار کے لیے جھیل کے کنارے جا رہا تھا کہ وہ ایک جال میں پھنس گیا۔ شیر نے اپنی تمام تر طاقت لگائی، مگر جال کی مضبوطی کے سامنے وہ بے بس تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں شیر ہوں اور یہ چھوٹا سا جال مجھے کیسے پکڑ سکتا ہے؟ شیر کے غصے اور تگودو کے باوجود وہ جال سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس نے مسلسل کوشش کی، مگر جال کی گرفت میں وہ جتنا بھی لڑتا اتنا ہی زیادہ پھنس جاتا۔ اسی دوران چوہا، جو شیر کو اس کے جال میں پھنسے ہوئے دیکھ رہا تھا، فوراً دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ شیر صاحب، میں ہوں نا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تم سے میری مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو خود اتنے چھوٹے ہو۔ چوہا شیر کے جال کے دھاگوں کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ چوہے کی محنت رنگ لائی اور جال کے دھاگے ٹوٹ گئے۔ شیر جال سے باہر نکل آیا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری مدد میرے لیے کتنی اہم تھی۔ میں نے تمہیں چھوٹا سمجھا تھا، مگر تم نے میری زندگی بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹا یا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ شکریہ شیر صاحب، میں آپ کی مہربانی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کسی کو اس کی چھوٹی حیثیت کے باعث کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا چوہا بھی وقت آنے پر شیر کی مدد کر سکتا ہے۔ زندگی میں ہر کسی کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں دوسروں کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ یہ کافی پرانے زمانے کی بات ہے، جب پرستان کے لوگ انسانوں کی دنیا میں آتے تھے اور بعض اوقات انسان بھی پرستان میں بطور تفریح چلے جاتے تھے۔ ان دنوں پرستان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ طاقت کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ کئی لاکھ فوج بھی اس کے ماتحت تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار ہیرے اور جواہرات بھی اس بادشاہ کے قبضے میں تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی بادشاہ نہایت رحم دل اور نیک فطرت تھا۔ کوئی بھی غریب پری یا پری زاد اس کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو 2 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام ستارہ پری تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کی طرح بہت رحم دل اور سادہ طبیعت کی تھی۔ اس کے برعکس چھوٹی بیٹی، جس کا نام چاند پری تھا، وہ اپنے باپ اور بہن کی نسبت بالکل کم عقل اور سنگ دل تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک غریب پری، جس کو چند پیسوں کی ضرورت تھی، وہ ناسمجھی کی وجہ سے چاند پری کے پاس آ گئی اور اس سے کچھ امید باندھی۔ مگر چاند پری نے اس کو کہا، تم غریب پری زاد، ہمارے ملک پر گندگی کا دھبا ہو اور پیسے مانگنے اس طرح آ جاتے ہو جیسے تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چاند پری نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کو کہا، اس بدزاد کو 2 کوڑے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ چنانچہ چاند پری کی اس حرکت پر پری نے رونا شروع کر دیا۔ خدا کے واسطے چاند پری مجھ پر رحم فرمائے، مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے آپ سے پیسے مانگے۔ ابھی غلاموں نے پری کو پکڑا ہی تھا کہ اتنے میں ستارہ پری اس جگہ پر آ گئی
इसने जब इस जगह पर शोर शराबा देखा तो चांद परी से पूछा, बहन क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हो। देखो तुम मुझसे बड़ी हो मगर तुमको ये हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे जाती मामलात में दखल दो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तमाम परिस्तान तुमको पागल परी कहता है। देखो तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे कोई बदतमीजी सरजद हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि इस परी का कसूर क्या है? इसका सिर्फ ये कसूर है कि यहाँ इनके बाप दादा की जायदाद है जो भीख मांगने चले आते हैं। ये सुनकर सितारा परी समझ गई कि मामला क्या है। इसने फौरन गुलामों को हुक्म दिया, इसको छोड़ दो। और हाँ चांद परी बहन, इस परी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सुनकर गुलामों ने इस परी को छोड़ दिया। सितारा परी इस गरीब परी को अपने साथ ले गई, इसकी कुछ माली इमदाद की और साथ में अपनी बहन की तरफ से इससे माफी मांगी। इत्तेफाक से इसी वक्त फरिश्ताए सीरते बुजुर्ग जो परिस्तान में किसी काम से आए हुए थे वो सब मामला देख रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, चांद परी तो बिल्कुल पागल है बल्कि जालिम है। अगर इस परी को सजा ना मिली तो ये परिस्तान में रहने वालों के लिए आफत बन जाएगी। बस उन्होंने दिल में सोचा कि मैं दरबार जाऊंगा। बस दूसरे दिन जब दरबार लगा हुआ था और दरबार में बड़ी रौनक थी। सोने की 3 कुर्सियां सामने तख्त पर बिछी हुई थी। दरमियान में परिस्तान का बादशाह बैठा था। एक तरफ सितारा परी बैठी थी और दूसरी तरफ चांद परी बैठी थी। बादशाह सलामत हर एक की फरियाद सुन रहे थे और बड़े इंसाफ से फैसले कर रहे थे कि अचानक सामने से एक सफेद लिबास में एक बुजुर्ग नमूदार हुए और फौरन बादशाह परिस्तान के सामने पहुंच गए। बादशाह ने बड़े गौर से उनकी तरफ देखा और बड़े इत्तेफाक से इनके आने की वजह पूछी। इस पर वो बुजुर्ग कुछ देर के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने अपनी खामोशी को तोड़ा और कहा, ए बादशाह, अगर मैं तुमसे तख्त मांगूंगा तो क्या तुम मुझे दे दोगे? ये तो बड़ी अजीब किस्म की ख्वाहिश है। मगर बादशाह को मालूम था कि आज तक कोई भी सवाली इसके दर से खाली हाथ नहीं गया और ये भी नहीं जाएगा। बस बादशाह ने कहा, आइए जनाब, आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए। ये कहकर जैसे ही बादशाह अपनी कुर्सी से उठने लगा, चांद परी एकदम अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। चांद परी की दोनों आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इसने अपनी गरजदार आवाज में कहा, ए जलील बज़दान बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस किस्म की ख्वाहिश करने की? मगर इस बूढ़े बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, हमें इस बादशाह से क्या लेना? ये तो सिर्फ बादशाह का इम्तिहान था जिसमें वो पूरा उतरा, और खास तौर पर चांद परी का, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये परी बहुत बदतमीज और जालिम है। इसलिए मैंने इस किस्म की ख्वाहिश जाहिर की ताकि ये पागल परी अपने अंदर का गंद बाहर निकाले, और अब इस परी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर इस बुजुर्ग ने चांद परी पर ऐसी फूंक मारी कि इसका तमाम जिस्म पत्थर का बन गया, मगर गर्दन से सर तक जिंदा रहा ताकि चांद परी अपनी हालत पर 2 आंसू बहाए। बादशाह ने जब अपनी बेटी की ये हालत देखी तो वो एकदम परेशान हो गया। इसने फौरन इस बुजुर्ग के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, ए बुजुर्ग, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को माफ कर दो, खुदा के वास्ते। इस बुजुर्ग ने आगे से जवाब दिया, तेरी बेटी बड़ी जालिम है, और हाँ गौर से सुनो, मैंने इसको पत्थर का तो बना दिया है मगर मैं इसको वापस इंसान नहीं बना सकता। ये कहकर वो बुजुर्ग सबके सामने नजरों से ओझल हो गया। बुजुर्ग के गायब हो जाने के बाद तमाम लोग वापस चले गए। बादशाह और सितारा परी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। इसके अलावा चांद परी भी अपनी हरकतों को याद करके ज़ारों कतार रोए जा रही थी, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सितारा परी ने चांद परी से कहा, मैंने तुमको कई बार समझाया था कि कभी किसी से बदतमीजी मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, मगर तुम हमेशा मेरी बातों को अनसुना कर देती थी। अब तुमने देख लिया इसका अंजाम। ये सुनकर चांद परी ने कहा, मैंने अब सच्चे दिल से तौबा कर ली है, मगर बहन मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ, वरना मुझे गला दबाकर खत्म कर दो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। चांद परी के पत्थर बन जाने के बाद सितारा परी इसके साथ ही रहती थी ताकि इसको अपने अकेलेपन का एहसास न हो। इसके अलावा वो काफी गौर भी कर रही थी कि चांद परी को इस मुसीबत से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। आखिर इसकी समझ में एक तरकीब आ ही गई। इसने अपने बाप से कहा, हमारे परिस्तान में एक बहुत नेक और शरीफ बुजुर्ग भी तो है जो किसी से मिलते नहीं। अगर हम इनके
जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो जरूर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। ये बात परिस्तान के बादशाह की समझ में आ गई। चनांचा दूसरे दिन वो दोनों इस बुजुर्ग के पास पहुंच गए जो कि परिस्तान के जंगल में रहते थे। बादशाह ने फौरन जाकर इनके कदमों में अपना सर रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगा। इस पर बुजुर्ग जो अपनी इबादत में मसरूफ थे बोले, उठो बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तुम किस लिए मेरे पास आए हो, मगर बेटा एक बात याद रखो कि उस परी को बिल्कुल ठीक सजा मिली है। अब वो पहले से काफी ठीक हो चुकी है। जी, अब वो कभी किसी से बुरा सलूक नहीं करेगी। मगर आप चांद परी को दोबारा सही हालत में लाने के लिए कुछ बताएं। इस बात पे वो बुजुर्ग बोले, रुके, चंद मिनटों के लिए मुझे सोचने का मौका दे। इसके बाद वो बुजुर्ग खामोश हो गए और उन्होंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। तकरीबन आधे घंटे सोचने के बाद उन्होंने आंखों को खोला और बोले, गौर से सुनो, इंसानों की दुनिया में जनूब के जंगल की तरफ एक दरिया है जिसमें मछलियों की मलका रहती है, जिसमें एक मुर्गी पाल रखी है। उस मुर्गी को हासिल करके उसको ज़िबा करके उसके खून से चांद परी को नहलाया जाए तो फिर ही वो अपनी असली हालत में दोबारा आ सकती। बुजुर्ग की ये बात सुनकर सितारा परी ने बुजुर्ग से कहा, मगर वो मुर्गी जिसे जल मछली इतनी मोहब्बत करती है हमें कैसे दे देगी? ये सुनकर इस बुजुर्ग ने एक फूल सितारा परी को दिया और कहा, गौर से सुनो, आज चांद की 11 तारीख है। तुम चांद की 14 तारीख की रात को इस दरिया पर पहुंच जाना, क्योंकि चांद की 14 तारीख की रात को मछली मलका अपने दरिया से निकल और खुश्की पर आ जाती है। दिनों मछली के सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। अगर तुम ये फूल उस मछली को खिला दोगी, बस जिस वक्त वो ठीक हो जाएगी तो वो खुशी से तुमसे पूछेगी कि तुम क्या चाहती हो। बस तुम इनाम में उस मुर्गी को मांग लेना, वो जरूर मुर्गी तुम्हारे हवाले कर देगी। सितारा परी ने इस फूल को बड़ी हिफाजत के साथ अपने पास रख लिया। अब तुम जा सकते हो क्योंकि मैंने इबादत करनी है। इसके बाद वो बुजुर्ग अपनी इबादत में मशगूल हो गए और सितारा परी और बादशाह वापस अपने महल में आ गए। महल में आने के बाद बादशाह ने कहा, काश मेरा कोई बेटा होता तो वो इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आता। अब मैं खुद उस दरिया पर जाऊंगा। जब तक आपकी बड़ी बेटी जिंदा है आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मगर बेटा तुम अकेली कैसे जाओगी? अब्बा हुजूर खुदा पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चनांचा 14 तारीख भी आ गई। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। सितारा परी इंसानों की दुनिया में पहुंच गई। यहाँ पहुंचकर इसने जुनूब की तरफ अपना रुख किया। चंद ही मिनटों में उसको वो जंगल मिल गया जिस जगह वो दरिया था। सितारा परी इस वक्त बड़ी तेजी के साथ उड़ रही थी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद इसको वो दरिया मिल गया। बस वो फौरन इसके किनारे पर उतर गई और मलका मछली का इंतजार करने लगी। काफी देर के बाद सितारा परी ने देखा कि एक सब्ज रंग और सुनहरे रंग की बड़ी मछली पानी में से बाहर आई है और खुश्की पर लेटकर हाय हाय करने लगी है। बस मौका अच्छा था। सितारा परी जल मलिका के पास पहुंच गई और कहा, बहन मुझे मालूम है कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैं परिस्तान से एक फूल लेकर आई हूँ, तुम इसको खा लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। बस मछली ने फौरन वो फूल खा लिया। चंद मिनटों में मछली ठीक हो गई। अब सुनहरी मछली ने परी से इसके आने की वजह पूछी तो परी ने शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। मलिका मछली ने कुछ देर सोचा, इसके बाद दोबारा दरिया में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो मुर्गी इसके ऊपर बैठी थी। वो मुर्गी इसने सितारा परी के हवाले कर दी। सितारा परी ने इसका शुक्रिया अदा किया और मुर्गी को लेकर फौरन अपने महल में पहुंच गई। वहाँ बादशाह इसका इंतजार कर रहा था। बस इसके बाद मुर्गी को ज़िबाह करके इसके खून से चांदनी परी को नहलाया। वो फौरन ठीक हो गई। चांद परी ठीक होने के बाद अपने बाप और अपनी बहन से भी ज्यादा नेक और शरीफ हो गई थी। अब वो किसी पर जुल्म न करती बल्कि गरीबों की मदद करती और अपने से बड़ों से आदाब व तमीज से पेश आती।